Okay, so hello everybody, good morning and welcome to the EduphoreIAS, the live Hindu analysis class. Today, the date is 28th of September and we are starting with the front page. As usual, what we do, पहले पेज वाइज हम चलते हैं. So, सबसे फर्स्ट फ्रंट पेज या फर्स्ट पेज जो आप बोलते हो, देखते हैं इस पे क्या है. Here it starts. So, हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने कहा है कि हिट जॉब्स ऑन फॉरेन सॉइल नॉट इंडियाज पॉलिसी. Okay. Minister says Ottawa was asked to provide any specific information on Niger's death. He says Canada has a very permissive environment for secessionist activity and has also seen organized crime. जैसा कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि कहीं ना कहीं इंडियन जो एजेंसीज हैं वो इन्वॉल्व हैं इन द किलिंग्स ऑफ निजर, हरदीप सिंह निजर. फाइन. तो सम वॉट इसके जवाब में ये कहा है हमारे मिनिस्टर साहब ने कि अगर ऐसा है तो कोई हम जैसे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं वो भी कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इस तरह की शेयर करें. ठीक है, सिर्फ क्लेम एंड एलिगेशन से नहीं चलता काम. तो वी हैव गिवन देम अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लीडरशिप विच ऑपरेट्स आउट ऑफ कनाडा. ठीक है, बट कनाडा ने अगर ऐसा कुछ किया होता, इन इनपुट्स पे काम किए होते तो आज ये रिजल्ट नहीं देखने को मिलता. ठीक है, and NIA ने crackdown start कर दिया है on the terror nexus and on those who are having any kind of nexus with the Khalistani groups. Apart from that, Manipur government extends APSAPA, that is Armed Forces Special Power Act, in hill districts for 6 months. ठीक है, considering the disturbed situation or disturbed area, Manipur government has extended this position of Armed Forces Special Power Act the whole state except in the jurisdiction of 19 police stations in 7 districts of the Imphal Valley for another 6 months. So पूरे state में except 7 districts. Okay. Okay. This article we'll be discussing today is related to the workers' rights. The G20 screen over Mazdoors their rights. India missed a chance to ensure labor welfare. तो इसको हम एडिटोरियल पे डिस्कस करेंगे एडिटोरियल पेज पे. अपार्ट फ्रॉम दिस, not much important, this page is from city, that is Delhi. You can have a look at it. Again city page. Fire at Mukherjee Nagar PG facility, 35 rescued. Mukherjee Nagar known for civil services, coachings and all. ओके, पॉलिटिक्स ओनली. हाँ, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ना. पॉलिटिक्स इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ ये बट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट समझने की चीज़ है दैट इज सरना कोड रिलेटेड टू एंड 5th and 6th शेड्यूल एरियाज क्या होते हैं. ठीक है, तो जो झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन जी, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखी है एंड कहा है कि रिकग्निशन दी जाए सरना कोड को, इज रिलेटेड टू द ट्राइबल्स ऑफ the tribes of Jharkhand. ठीक है, तो सरना कोड है क्या? It is seeking to the Sarna code for tribals to protect their constitutional rights and religious identity, which he said is imperative as some groups are demanding the uniform code for the entire country. तो entire country के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाई जाए, बट जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनके की लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर डिफरेंट होती है, उनको उसको प्रिजर्व करने के लिए ज़रूरी है कि इनको अलग जो एक कोड है या जो रिकग्निशन है वो दी जाए. He also mentioned that somewhat the tribal population जो है in state Jharkhand, it has declined from 36% to 26% since independence, and this could have an adverse impact on framing of policies for them under the 5th and the 6th schedule of the constitution. Now 5th schedule जो है contains provisions for the administration and control of scheduled areas and scheduled ट्राइब्स, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, शेड्यूल्ड और स्केड्यूल्ड एरियाज के लिए भी एंड ट्राइब्स के लिए भी. बट जो 6th शेड्यूल है वो पर्टिकुलरली रिलेटेड है विद द 4 ट्राइबल दिस एरियाज दैट ऑफ द स्टेट, दैट इज असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. और ये जो है 5th शेड्यूल आपकी ये है 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया में प्रिवलेंट, लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
नो जहाँ पे भी शेड्यूल्ड पॉपुलेशन है, ठीक है, राजस्थान एंड सो ऑन, ठीक है। ये सिर्फ 4 स्टेट्स में अप्लीकेबल है एक्सक्लूसिवली। Sixth schedule has provisions relating to the administration of the tribal areas in these 4 states, Assam, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। तो झारखंड असेंबली ने ऑलरेडी एक बिल पास कर रेजोल्यूशन पास की थी नवंबर 2021 में फॉर द इंक्लूजन ऑफ सरना एज अ सेपरेट रिलीजन इन द सेंसस डॉक्यूमेंट। पर ये तभी पॉसिबल है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब तक इसको गो अहेड ना दे, ग्रीन सिग्नल ना दे, ठीक है, एक्सेप्ट ना करे। तो Jharkhand adheres to Sarna code, follows ancient traditions and considers worshipping trees, mountains and protecting forests as their religion. So natural चीजों की ये worshipping करते हैं, देख सकते हो ये जो particular tribe जिनको कि सरना के अंडर रखा गया है, जितने भी tribes हैं, their culture, worship methods, ideals and beliefs are different from all prevalent religions. So in view of the circumstances, a separate tribal or Sarna code is necessary to identify the nature worshipping tribals as distinct from Hindu and followers. तो इसलिए क्योंकि नेचर की वर्शिप करते हैं, इसलिए जो सीएम साहब हैं वो कह रहे हैं कि सरना कोड के अकॉर्डिंग इनको रिकॉग्निशन दी जाए, द ट्राइबल्स ऑफ झारखंड, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये हमारे लिए बस इतना आपको पता होना चाहिए सरना कोड है किससे रिलेटेड, प्लस 5th एंड 6th शेड्यूल जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के वो किसी से, दैट्स इट, ओके। सो बिहार में जो सेकेंड टाइगर रिजर्व है दैट विल बी कमिंग अप, और रिजर्व टू कम अप इन कैमूर सेंचुरी, कैमूर हिल्स जो है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द वाल्मीकि एक टाइगर अभी तक सिंगल टाइगर रिजर्व जो था वो दैट वाज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। नाउ नेक्स्ट इज कमिंग अप इन द कैमूर हिल्स और कैमूर इटसेल्फ सेंचुरी, ठीक है, जो कैमूर डिस्ट्रिक्ट है प्राइमरली, ठीक है। तो लैंडस्केप अगर आप देखोगे इसकी तो प्राइमरली कंप्राइजेस 2 लैंडस्केप्स, द हिल्स, इसलिए हम इसको कैमूर हिल्स बोल देते हैं, नॉन एज कैमूर प्लेट्यू, एंड द प्लेन्स ऑन द वेस्ट विच आर फ्लैंक्ड बाय द रिवर्स करमनासा एंड दुर्गावती। तो आपको पता होना चाहिए जैसे कर्णावती, दुर्गावती, देयर आर हेमावती, तो जैसे हमने साउथ में देखा था दे आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी एंड ऑल। तो कंफ्यूज नहीं करना कि दुर्गावती कहीं ना कहीं हमने कर्नाटका में तभी पढ़ा था कुछ, बट ये यहाँ पे भी है बिहार, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कैमूर हिल्स हैज डेंस फॉरेस्ट कवर एंड इज होम टू टाइगर्स, लेपर्ड्स एंड चिंकारास। तो इट्स नॉट कि चिंकारा सिर्फ राजस्थान में मिलते हैं, कैमूर हिल्स में भी हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बट फाइनली जो अथॉरिटी है दैट रेस्ट विद द NTCA, दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, अप्रूवल इज मैंडेटरी फॉर डिक्लेयरिंग कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अ टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो जब इनसे इनको परमिशन मिल जाएगी NTCA से, तो ऑफ कोर्स दिस कैमूर सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज गोइंग टू बी बिकम द कैमूर टाइगर रिजर्व, ठीक है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पॉपुलेशन की बात करें टाइगर की तो इंक्रीज होती हुई नजर आई है। टुडे इट स्टैंड्स एट 54 अकॉर्डिंग टू NTCA रिपोर्ट, अर्लियर इट वाज 31 इन 2018। सो ओवरऑल इन टाइगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो ऑफ कोर्स अभी हमें बढ़ता हुआ, ओके। ओके, सो दिस इज द एडिटोरियल पेज एंड दोनों ही आर्टिकल्स आज के इस पेज पे जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट इज द G20s एंड स्क्रीन ओवर मजदूर्स देयर राइट्स। तो इट मीन्स जैसे कि टाइटल सजेस्ट कर रहा है कि जो आर्टिकल है ये किससे रिलेटेड है, वर्कर्स रिलेटेड है, मजदूर से रिलेटेड है, ठीक है। एंड स्पेशली फोकसिंग ऑन दोज वर्कर्स हु आर इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं जो बाहर देशों में काम कर रहे हैं, स्पेशली अरब नेशंस में, मिडल ईस्ट कंट्रीज में, सऊदी अरेबिया, UAE एंड ऑल। तो उसके फोकस में सेंटर में जो आर्टिकल के हैं वो मजदूर एंड वो वर्कर्स हैं बाहर काम। फर्स्ट पैराग्राफ इज ऑफ कोर्स रिलेटेड टू द G20 जो समिट है एंड उसकी सक्सेस जो है, बट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज समथिंग इज सेइंग कि सब तो बढ़िया है, सब कुछ अच्छा रहा, बट सम वॉट इंडिया मिस्ड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू प्रोटेक्ट वर्कर्स राइट्स and advance the welfare of workers during the G20 summit despite the G20's Labor 20, ठीक है। तो G20 के अंदर डिफरेंट
यूथ 20, लेबर 20, काफ़ी सारे 20, वीमेन 20, इस तरह से हमें डिफरेंट इंडिया के सिटीज़ में हमें मीटिंग्स देखने को मिली थी कहीं ना कहीं। तो लेबर के को ध्यान में रखते हुए भी लेबर रिलेटेड भी L20 करके एक कोलिशन है ऑफ G20 लीडर्स कंसर्न अबाउट वर्कर्स होल्डिंग 2 मीटिंग्स इन इंडिया। इनकी भी 2 मीटिंग्स हुई थी, फिर भी जो ये मुद्दा उठा रहे हैं उस पर कोई खास बात नहीं हुई। फाइन। फिर यहाँ पे थोड़ी पॉलिटिक्स भी डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। फाइन। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इज एन एक्सप्लॉइटेटिव लेबर सिस्टम। लेबर एक्सप्लॉइट किया ही जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं। The Indian government should have taken the opportunity to address the serious issue facing workers in India, such as forced labor, modern day slavery, and the kafla system. Now आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि the kafla system, which was recently in news, is related to. तो आपको पता होना चाहिए कि it is related to the labor's exploitation. Okay? In the Arab Gulf actually. So Gulf of Arabia जो है, अरब गल्फ है, सऊदी अरेबिया एंड UAE, all these countries. So वहाँ पे हमें काफला सिस्टम जो है मोस्टली है, where some 9 million Indians are working under exploitative working conditions. So 9 million जो इंडियंस हैं वो सऊदी अरेबिया, दिस अरब गल्फ या गल्फ ऑफ अरेबिया जो है वहाँ पे अंडर एक्सप्लॉइटेटिव कंडीशंस काम कर रहे हैं। ठीक है। The Arab Gulf countries follow an exploitative labor system called the kafala system, which ties migrant workers to their employers. This system makes it difficult for migrant workers to leave their jobs or change employers, and it increases their risk of forced labor and modern day slavery. Okay? देख सकते हो कहीं ना कहीं इसके अंडर जो वर्कर्स हैं उनको टाई कर दिया जाता है एम्प्लॉयर्स के साथ, कुछ कंडीशनैलिटी जैसे इंपोज कर दी जाती है, उनकी आइडेंटिटी कार्ड्स रख ली जाती हैं, so दैट कि जब तक वो अपना टारगेट पूरा ना करें उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, छोड़ने नहीं दिया जाता, जो काम नहीं करने दिया जाता। इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। तो अगेन एक पॉलिटिकल एंगल की डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें गवर्नेंस इशू उस पर ध्यान देने की जरूरत। तो somewhat he is saying that the Indian government missed a chance to make a real difference in the lives of workers. Okay? Portable insurance schemes are important, but they are not enough. Workers also need job creation, decent working conditions, equal pay, gender equality, the elimination of forced labor, child labor, and end to modern day slavery, the protection of their rights, and the welfare of their families. कि ये सब भी चाहिए। सिर्फ एक पोर्टेबल काइंड ऑफ इंश्योरेंस स्कीम बना दोगे वर्कर्स के लिए, दैट इज समथिंग टू सफाइस और दैट इज नॉट सफिशिएंट। ये सारी चीज़ें भी ज़रूरत है उनकी वेलफेयर के लिए, अगर एक वाइडर स्पेक्ट्रम को ध्यान में रखें तो। So it would have been a relief for the Indian working class, especially in the Arab Gulf, had these issues been prioritized and debated at the G20. Saudi Arabia, which hosts over 2.5 million Indian workers, is a permanent member of the G20. Oman and United Arab Emirates, which were invited to the summit, have nearly 8 lakh and 3.5 million Indian workers respectively. तो देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा वर्कर्स, इंडियन वर्कर्स कहाँ पे हैं? यूएई में, दैट इज 3.5 मिलियन, देन 2.5 मिलियन आपके कहाँ पे हैं? सऊदी अरेबिया में, एंड समवॉट 8 लाख जो हैं, दैट इज मीन्स लेस देन 1 मिलियन इन 0.8 मिलियन इन ओमान। ठीक है। तो टुगेदर अगर आप इसको क्लब करोगे 3.5, 2.5, 6 मिलियन प्लस नियर अबाउट 1 मिलियन, 7 मिलियन आर इन दिस 3 कंट्रीज, जो कि तीनों ही G20 में either 2 of them were invitees and 1 of course is a permanent member, that is Saudi Arabia. तो इसलिए ये अच्छा प्लेटफॉर्म था कि यहाँ पे डिस्कस करनी चाहिए थी वर्कर्स की वेलफेयर, वर्कर्स एक्सप्लॉइटेशन जो है। बट इसका अदर साइड ये भी है पिक्चर की कि कहीं ना कहीं अगर ये मुद्दे डिस्कस करते तो समझ सकते हो आप कि ये सऊदी अरेबिया की इन तीनों कंट्रीज को ही पसंद नहीं आने वाले थे, और अगर ऐसे मुद्दे को डिस्कस करते तो हो सकता है कि जो G20 दिल्ली डिक्लेरेशन है देखने को मिलता ही नहीं। क्या ये भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्शंस उनकी हो सकती हैं इस मुद्दे पे। सो इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइग्रेंट सेंडिंग कंट्री विद एन एस्टिमेटेड 13 मिलियन वर्कर्स अब्रॉड। 13 मिलियन, 13 मिलियन हमारे वर्कर्स हैं, जो मीन्स 1.3 करोड़। ठीक है, इतने जो है हमारे वर्कर्स बाहर हैं। ऑफ दीज एन एस्टिमेटेड 9 मिलियन आर वर्किंग इन एक्सप्लॉइटेटिव कंडीशंस इन द अरब गल्फ। 3 कंट्रीज में हमने 7 मिलियन देख लिए, 2 मिलियन बाकी और भी कंट्रीज जो हैं, ठीक है, उसमें गल्फ के, उसमें मतलब 9 मिलियन टोटल जो है इंडियन, 13 मिलियन में से सिर्फ गल्फ वाले रीजन्स में। ठीक है,
and working under exploitative conditions. But the exploitation of Indian workers is not limited to the Arab Gulf. In India itself, workers in a number of industries including textiles, brick-kiln, shrimp farming, copper manufacturing, stone cutting and plantation face forced labor and modern day slavery. तो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर वाले देशों में ही या गल्फ में ही, बट इंडिया वर्कर्स, इंडियन वर्कर्स हैं, अपने देश में ही उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी फेस करनी पड़ती है. इट्स नॉट नेसेसरली कि सिर्फ बाहर वाले देशों में ही. ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है. एंड अकॉर्डिंग टू द वर्क फ्री फाउंडेशन, एक फाउंडेशन है बाय द नेम ऑफ वर्क फ्री, there are an estimated 27 million people trapped in modern day slavery in G20 countries, of whom 11 million are in India. तो टोटल 2.7 करोड़ या 27 मिलियन जो लोग हैं वो ट्रैप्ड हैं इन मॉडर्न डे स्लेवरी इन द G20 कंट्रीज. ठीक है, जिसमें से कि 11 मिलियन मीन्स 1.1 करोड़ जो हैं वो लगभग किसमें है, वर्किंग अंडर एक्सप्लॉइटेटिव कंडीशंस. So many would be surprised with the term forced labor and modern day slavery. According to the International Labour Organization ILO, forced or compulsory labor is all work or service which is exacted from any person under the threat of a penalty and for which the person has not offered himself or herself voluntarily. forced या जो compulsory labor है वो सर्विस होती है या वर्क काम होता है जिसमें कि आप किसी से जबरदस्ती अंडर द थ्रेट ऑफ पेनल्टी और काम कराते हो जिसके के लिए वो तैयार नहीं होता, वॉलंटरली वो खुद से नहीं करना चाहता. ठीक है, इट मस्ट बी नोटेड दैट इंडिया हैज साइंड एंड रेटिफाइड द ILO's इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन नोन एज C29. तो ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इंडिया जो है दैट इज सिग्नेटरी टू दिस कन्वेंशन कॉल्ड C29 ऑन फोर्स्ड लेबर, ILO's forced labor convention. So in other words, forced labor is different from substandard or exploitative working conditions. ठीक है, of course condition is one thing, forcing to human beings to work under such kind of exploitative conditions, of course a different thing. So various indicators can be used to ascertain when a situation amounts to forced labor, such as किस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये forced labor इंडिकेट हो रहा है यहाँ पे. तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ फैक्टर्स हैं. फॉर एग्जांपल, restrictions on workers' freedom of movement, withholding of wages or identity documents, physical or sexual violence, threats and intimidation, or fraudulent debt from which the workers cannot escape. ठीक है, कर्जे में फंसा लेते हो, ऐसी चीजें कर देते हो कि हाँ वो बाहर ही नहीं निकल पाए, उसके डॉक्यूमेंट्स को रख लिए या इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो फिजिकली और सेक्सुअली, एंड ऑफ कोर्स उसकी मूवमेंट को भी कहीं ना कहीं आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है. फाइन, नॉट जस्ट एन इंडियन प्रॉब्लम. सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में प्रॉब्लम, जैसे हमने देखा इन्होंने G20 एज अ होल की बात की. ठीक है, जहाँ पे 27 मिलियन टोटल है, उसमें 11 मिलियन जो है ऑलरेडी सिर्फ इंडिया में. ठीक है, तो इन्होंने एक स्टडी की है स्पेशली इन श्रिम्प इंडस्ट्री ऑफ आंध्र प्रदेश, suggests that workers who are paid less or unpaid for overtime under the threat of being fired if they ask for it are victims of forced labor. Workers who are forced to work until they have paid off a loan they took from the company. तो देख सकते हो कि क्या मेजर्स उठाती हैं कंपनियां या जो एम्प्लॉयर्स हैं. So they are also victims of forced labor. Companies that withhold workers' identity documents such as Aadhaar cards or ration cards and deny them access to the documents when required until the work is done are also engaging in forced labor. So ये भी एक तरीके की आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं forced labor का ही पार्ट है कि आपने किसी के आइडेंटिटी कार्ड को विदहोल्ड कर लिया या आपने राशन कार्ड्स को विदहोल्ड कर लिया या उनको इन डॉक्यूमेंट्स की एक्सेसिबिलिटी जो है वो नहीं दे रहे हो. Issuing threats of sexual, physical or mental abuse in order to get the work done is also forced labor. So forced labor सिर्फ यही नहीं कि आप exploitative conditions के अंदर काम करा रहे हो, that is forced labor. Forced labor is all these things, all this amounts to forced labor in one form or the other. Addressing forced labor and modern day slavery is important for India because the exploitation of workers would increase inequality, unstable social justice and threaten democracy. Okay? बिल्कुल ठीक बात है कि इसलिए एड्रेस करना जरूरी है forced labor की जो प्रॉब्लम है. In addition, we should not forget that the move by the Indian government to consolidate the labor laws into 4 labor codes is drawing protests from the trade unions, civil societies and workers who allege that it will have a negative impact on decent working conditions.
है। सो लेबर यूनियन जो है वो खुश नहीं है इन चारों कोड। In India, there are 530 million workers, means 5.3 crores, 53 crores, 5.53 crores, of which 43 crores are in the informal sector. So 43, 53, सिर्फ 10 करोड़ जो है वो फॉर्मल में है, बाकी सब इनफॉर्मल में। Are prone to different forms of exploitation, especially forced labor. So this is not only an Indian problem. All G20 countries face a similar situation. Therefore, we need to address the situation of kind of situation. We will not be able to achieve the sustainable development goals targets for 2030, especially the first one, which aims to eradicate poverty, unless and until we are not addressing this situation of forced labor. ठीक है, तो जरूरी है कि क्योंकि पॉवर्टी क्या है, अगर उनको इस तरह से फोर्स करके काम कराओगे तो गरीबी वही इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलेगी, तो हम कभी भी पॉवर्टी को इरेडिकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, without decent working conditions, how can a worker earn a living wage and keep themselves and their families out of poverty? बिल्कुल ठीक बात है। The Work Free Foundation also reports that in 2021 the G20 countries imported goods worth 41 lakh crore that were made by workers exploited under modern day slavery. So ये भी एक डेटा है कि 2021 में 41 लाख करोड़ वर्थ ऑफ द गुड्स जो इंपोर्ट की इन G20 कंट्रीज ने, जिसको भी बनाया किसने है, इन्हीं वर्कर्स ने जो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेशन के शिकार हैं या मॉडर्न डे स्लेवरी। तो सब्जेक्ट्स नॉट डिस्कस्ड एक्चुअली इन द G20। कहते हैं कि G20 को डिस्कशन करनी चाहिए थी इस रिलेटेड, वर्कर्स की वेलफेयर रिलेटेड, बट ऐसा नहीं हुआ। द G20 शुड हैव डिस्कस्ड इन्वेस्टमेंट in job creation, compliance with the promise of the fundamental principles and rights at work, ensuring minimum living wages and equal pay, social protection for all with official development assistance, साथ में establishing equality of incomes, gender, race and coordinating action on inclusion as the basis of right-based development model realized through multilateral reform that deals with the threats to our peace and security. इन सभी मुद्दों की इन सब मेजर्स को लेकर के कहीं ना कहीं इक्वालिटी को इंश्योर की जा सकती थी, कहीं ना कहीं उनकी जो मिनिमम लिविंग वेजेस है उसको इंश्योर की जा सकती थी। तो दिस वाज द राइट स्टेज जहां पे कहीं, ठीक है, द G20 फोरम। अनफॉर्चुनेटली नॉट मच हैपेंड, workers were ignored just as green curtains were used to screen out the dwellings of the poor that were near areas of G20 summit events to avoid embarrassment about the reality. Okay? कुत्तों को भी आपने देखा होगा हटाया गया था, चलो दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, बट इस तरह की चीज़ें इंडिया में देखने को मिल जाती है। ठीक है, जब कोई वीआईपी विजिट होती है, कुछ झोपड़ियों को छुपा दिया जाता है। ठीक है, तो आपको चंडीगढ़ के पेरिफेरी में भी देखने को मिलता है। So the two heroes of Sanatan Dharma and their insights. Now this is very very important from understanding the Bhakti movements and the of course the Sanatan Dharma and all। अगर फिलोसफिकल एंगल से हम बात करें या इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस को, तो जो यहाँ पे दो हीरोज हैं जिनकी ये बात कर रहे हैं, दैट वन इज स्वामी विवेकानंदा एंड सेकंड इज द सुब्रमण्यम भारती। ठीक है, इन दो लोगों की इसमें इन्होंने बात की है। प्लस आपको पता होगा जैसे कि काफी टाइम से कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिल रहा है कि सनातन धर्म के अराउंड काफी सारी चीजें चल रही है, काफी पॉलिटिशियंस हैं जो इसके आसपास बातें कर रहे हैं, बट सम व्हाट एक्सक्यूज मी, बट कहीं ना कहीं ये फ्रैक्चर्ड डिबेट्स हैं, सिर्फ वोट गार्नर करने के लिए अपने हिसाब से, मीन्स अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, पॉलिटिकल कन्वीनियंस जो है उसको देखते हुए जैसे मन करा वैसे यूज कर लिया। बट सनातन धर्म इज एन इटर्नल रिलीजन, इट्स नॉट अबाउट जस्ट हिंदुइज्म और इट्स जस्ट अबाउट एनी सेक्ट, इट्स नॉट अ सेक्टेरियन रिलीजन, इट्स एन इटर्नल रिलीजन। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस, हिंदू एंड हिंदुइज्म में भी डिफरेंस है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्विकली कमिंग टू द फर्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने पॉलिटिक्स की बात की है कि अभी केरला के जो सीएम साहब हैं उन्होंने इनॉग्रेशन की श्री नारायण गुरु की जो है वहां गए हुए थे, जो वहां पे इन्होंने कहा कि श्री नारायण गुरु ने वर्ड सनातन यूज नहीं किया एज अ प्रीफिक्स टू धर्मा, सनातन धर्म, बट एसएनडीपी उनका नाम ही था, श्री नारायण गुरु, एस जो था वो सनातन नहीं था, श्री था, श्री नारायण गुरु धर्मा परिपालना सभा, एसएनडीपी इसको बोलते हैं। ठीक है, जो कि लो कास्ट की अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने एक तरह से जो रिलीजियस मूवमेंट है वो चलाई थी। ठीक है, ठीक है, तो
ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो what Mr. Vijayan and other politicians do not seem to appreciate is that no Hindu reformer, including Sri Narayan Guru, criticized Sanatan Dharma or disowned it in favor of any other religion or philosophy. तो कहते हैं कि ठीक है, आपने ये तो कह दिया कि श्री नारायण धर्म परिपालना सभा जो है, जो श्री नारायण गुरु ने बनाई थी एज अ रिलीजियस मूवमेंट टू अपलिफ्ट द लोअर कास्ट, यू नो, दिस अमंग्स द हिंदूज इटसेल्फ. सो कहीं ना कहीं इसमें क्या है कि इन्होंने ये भी तो नहीं कहा, इन्होंने डिस्क्रेडिट नहीं किया या कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज नहीं किया हिंदुइज्म को, सनातन धर्म को. ठीक है, सो व्हाट इट शोज कि पीपल आर यूजिंग दिस अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिटिकल कन्वीनियंस. ठीक है, आपको इस चीजों का ध्यान रखना है, उसमें नहीं पढ़ने की जरूरत. ठीक है, what is important for us is rest of part of this article. So features that are most Sanatan. Orthodox opponents of 19th century reform movements such as Arya Samaj and the Ramakrishna Mission call themselves Sanatanis to emphasize permanence of ancient textual doctrines over dynamism and change as an essential feature of Hinduism. So जो change and dynamism है, that is essential feature है. And even कि Hinduism में भी जो orthodox nature है, जो कि change को नहीं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे, उसको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया गया है. खुद जो इसके अंडर ही जो रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने खुद क्रिटिसाइज किया इस चीज को. जस्ट लाइक मेनी वॉइसेस दैट रेजिस्ट चेंज राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ आदि शंकराचार्य टू द भक्ति मूवमेंट्स, द सेल्फ प्रोक्लेम्ड सनातनिस्ट आल्सो रिमेन्ड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री. ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये लोग जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड सनातनिस्ट अपने आप को मानते थे, दे वर इवन ऑन द wrong side of the history. So what they fail to realize actually is that, like some politicians of the today, is that dynamism and propensity for reform are the most Sanatana or ancient or original of Hinduism धार्मिक features. बिल्कुल ठीक बात है कि जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे जो हिंदुइज्म है, नॉट हिंदूज की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदुइज्म, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स. हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ इटसेल्फ. तो समवॉट जो कि सनातन धर्म की फिलॉसफी पे बेस्ड है, it actually is a very dynamic and it has a propensity for reform as well as change. ठीक है, which is why the reformers had no qualms in using the phrase Sanatan Dharma to describe their philosophies. So in the सत्यार्थ प्रकाश, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा था इसको, called the Vedic Dharma bereft of many prevailing features of Hinduism in including untouchability and idol worship. सनातन नित्य धर्मा, इसको इन्होंने ये कहा था कि वो वैदिक धर्म जो बेरेफ्ट ऑफ मेनी प्रिविलिंग फीचर्स ऑफ हिंदुइज्म है, फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, आइडल वर्शिप की बात करते हैं, इसको इन्होंने क्या बोला था, सनातन नित्य धर्म. Few can dispute that the proud Sanatani like Mahatma Gandhi had the greatest role in bringing women into the country's social mainstream. In fact, it was Gandhians such as Renuka Ray and Hansa Mehta who first campaigned for reform in Hindu family laws, despite facing stiff oppositions once again from self-proclaimed Sanatanis. ठीक है, तो नो डाउट चेंज जो होता है वो हमेशा पेनफुल होता है, जल्दी एक्सेप्टेबल नहीं होता, चाहे वो रिलीजन के लेवल पे हो, चाहे वो हमारे इंडिविजुअल लेवल पे हो. एज अ ह्यूमन बीइंग भी चेंज नहीं होना चाहते. ठीक है, तो रेजिलियंट कहीं ना कहीं हमें बनने की जरूरत पड़ती है. रेजिलियंस इज वन ऑफ द नेचर, जरूरत होनी चाहिए. तो द रिस्पॉन्स क्या थी इन दोनों लोगों की, हंसा मेहता एंड नॉट टू डिराइड सनातन धर्म, कि वो सनातन धर्म या हिंदुइज्म के अंडर ही कुछ रिफॉर्म्स मेजर लाना चाहते थे ये दोनों लोग, बट कहीं ना कहीं उनका मतलब मोटिव जो था वो ये नहीं था कि डिराइड करो, सनातन धर्म की जो है डिसरिस्पेक्ट करो. ठीक है, बट जो भी रॉन्ग चीजें हैं उसमें उसको जरूर क्रिटिसाइज करनी है, उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है. दैट व्हाट शुड बी द स्पिरिट. इन द सेंट्रल असेंबली, ठीक है, रेणुका रे ने क्या कहा था उस टाइम पे, she quoted verse after verse from Upanishads and scriptures to highlight Hinduism egalitarianism. Egalitarianism is the principle or philosophy of equality. ठीक है, any effort to carve Hinduism into progressive and regressive blocks and label the latter Sanatan Dharma cannot overcome the influence and example of two icons or the heroes of Sanatan Dharma, one Swami Vivekananda and other Subramanian. So the import of Chicago speech जो 1893 की थी, फेमस हुई थी जो विवेकानंद की. ठीक है, शिकागो में. तो उस टाइम पे विवेकानंद जी ने क्या कहा था वहां पे, he used every kind of critical epithet to describe the state of Hinduism and its youth. This anger and call for action arose only from his grounding in Sanatan Dharma. ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था
Before Sri Narayan Guru built his movement for emancipation of low caste Hindus in Kerala, Swami Vivekananda called the region a lunatic asylum, जो केरला साइड की रीजन है, for the kind of barbaric practices Hindus perpetrated against each other. कि हिंदूज ने खुद ही अपने जो उस हिंदू के अंडर जो लो कास्ट हिंदूज थे उनके खिलाफ जो भी इस तरह की एक्सप्लॉइटेटिव एंड बारबारिक प्रैक्टिसेस उन्होंने प्रीच की या प्रैक्टिस की, उसको इन्होंने लुनाटिक, इस रीजन में हुई थी, केरला वाले रीजन में, तो इसको स्वामी विवेकानंद ने लुनाटिक असाइलम बोला. ठीक है. तो and this anger and call for action arose only from his grounding in सनातन धर्म, क्योंकि सनातन धर्म के काफी वो स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थे, एडवोकेसी थी उनकी. सो कहीं ना कहीं अब स्वामी अभेदानंदा जो थे स्वामी विवेकानंदा के चोजन सक्सेसर थे, for his international mission, called the Chicago speech an outline of Sanatan Dharma. He described the import of Swami Vivekananda's speech. The word Sanatan Dharma, as you all know, means eternal religion. The eternal religion has no founder. And by religion, we do not mean a particular set of doctrines and dogmas. But by religion, it is not mean that we should accept some of the words written in a book as infallible truth, whether the question of minds are answered or not, but by religion is meant a solution of all the problems of life and death. So religion is what? Religion is through which you find a solution both birth and death, or the problems of life and death, and not about just Aryan belief or just about Hindu. Okay, that is not actually. Okay. So it was this Sanatan Dharma that formed the basis of Swami Vivekananda's attack on sectarian bigotry and its horrible descendant fanaticism, which have long possessed this beautiful earth. ठीक है. तो इसी बेस पे, इसी सनातन धर्म के ग्राउंडिंग में, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने अपना काम सनातन धर्म जो थी वो फाउंडेशन थी उनकी सारी प्रीचिंग की एंड ऑल, उसी बेस पे इन्होंने क्रिटिसाइज या अटैक किया था ऑन द सेक्टेरियनिज्म, bigotries and somewhat horrible descendants like fanaticism and all. So it is essentially different from any religion that is static by virtue of having a single source. It is different because it is antithetical to dogma. ये बिल्कुल उलट है, विरुद्ध है. भारती. Now next is second icon is Subramaniam Bharati, an indirect disciple of Swami Vivekananda through his dharmic putri sister Nivedita. ठीक है. तो इन कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट डिसाइपल थे ये सुब्रमण्यम भारती जी स्वामी विवेकानंदा के ही थ्रू his धार्मिक पुत्री called Nivedita, sister Nivedita, was equally anguished by the state of material and spiritual debility to which India had sunk during his times. In a poem titled My Heart Seethes, he writes, like blind children. So the poem, The Heart Seethes was written by, remember, Subramaniam Bharati. Historically, modern history में इनकी बहुत contribution रही है, नाम है, इसलिए इनकी जो even writings है वो काफी important हो जाती है एग्जाम. Like blind children, they follow always in this sacred land where once flourished more than 1 million ennobling arts like senseless beasts, they now simply subsist. ठीक है. तो इन्होंने अपने इस पोएम में, इस राइटिंग में ये कहा कि कहीं ना कहीं like blind children, they follow always in this sacred land, जो हमारी sacred land है, where once flourished more than 1 million ennobling arts like senseless beasts से compare किया इस चीज को, and they are now simply subsist. The allusion is to the path of Sanatan Dharma from which Indians have gone astray. So for Bharati, without spiritual awakening, there could be no political liberation. Very important. When attempts have been made to distance these icons from their dharmic background, as Sahitya Academy awardee Kana Subramaniam says, communists were never tired of quoting the poem of Subramaniam Bharati on the Russian Revolution, often forgetting or willfully withholding the fact that he attributed to the mother goddess of India as well as of the world, in fact Mahakali of the universe, the Russian Revolution. ठीक है. So Russian Revolution को इन्होंने attribute किया था और dedicate किया था with respect to the mother goddess और महाकाली. ठीक है. जो कि कम्युनिस्ट जो हैं वो इस चीज को कभी भी कोट नहीं करते, कभी भी आपको नहीं. ठीक है. तो कहीं ना कहीं again political convenience देखी जाती है. That is their profession, they are not wrong with that. So Swami Vivekananda, on the other hand, did not spare even the greatest of gurus such as Shankara and Ramanuja from criticism. This does not mean he thought outside the sphere of Sanatan Dharma, but his every act, his practice, preaching, everything was grounded in the philosophy or this of Sanatan Dharma itself. ठीक है.
but the interpretation was of course different. In perspective, recently on September 11, Bharti was remembered on his death anniversary, and country celebrated 130th anniversary of the Chicago speech at the World's Parliament of Religions. These are the occasions to remind ourselves that Bharti and Swami Vivekananda could espouse Sanatan Dharma in a manner that appears to subvert its own established rules, only because, as Dr. Sarpalli Radhakrishnan says, the former Prime President of India, Hinduism is not bound up with a creed or a book, a prophet or a founder, but is persistent search for truth on the basis of a continuously renewed experience. Okay, so this is the real Hinduism, not just about a book or a prophet or just about a particular sect or sectarian beliefs. Fine, rather it is something where we persistently search for truth basis of what? Continuously renewed. This article is something like goosebumps, so जरूर इसको पढ़ना, रिवाइज करना, and you can of course use this article wherever you find something in art and culture and all related to these icons, the heroes, their viewpoint on religion and all. Definitely ये कहीं ना कहीं आपको handy आ सकता है. Okay, so do use it smartly. Okay, next is text context when India and Canada ties were reset. So ये तब की बात है जब उस टाइम पे कैनेडियन देन प्राइम मिनिस्टर थे स्टीफन हार्पर स्टैंड्स एट द मेमोरियल साइट फॉर द विक्टिम्स ऑफ एयर इंडिया फ्लाइट 182 इन टोरंटो ऑन जून 2010. तो उस टाइम के स्टीफन हार्पर जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने काफ़ी उनके टाइम पे जो कहीं ना कहीं सिचुएशंस थे या जो रिलेशंस थी वो इम्प्रूवमेंट उसमें देखने को मिली थी, बट बेस्ड ऑन एड्रेसिंग फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स ऑफ 1985 एयर इंडिया कनिष्का फ्लाइट 182 which exploded over the Irish coast after a bomb placed in the luggage went off for which खालिस्तानी separatists were convicted. तो ये भी खालिस्तानियों की करतूत थी, देख सकते हो. Canadian Prime Minister Stephen Harper said he was sorry on behalf of the Canadian government. Killing this number of persons, how come sorry can be substituted for this such kind of human practices. So Prime Minister Manmohan Singh visit for the G20 summit in Toronto was a chance to reset ties. No Indian Prime Minister had visited Canada since 1973, and although it was a multilateral summit visit, the bilateral meeting with Mr. Harper saw a number of agreements signed. कहीं ना कहीं जब विजिट की थी टोरंटो में प्राइम मिनिस्टर देन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो वहाँ उस टाइम पे कुछ हमारे को देखने को मिली थी, बट इस टाइम पे रिलेशन जो है ऑलरेडी स्लाइड काफ़ी साइड जा रही है. हाउएवर आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो लिबरल्स पार्टी, नाम लिबरल है बट काम सारे कंजर्वेटिव, एंड हिज डिपेंडेंस ऑन द न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी लेड बाय जगमीत सिंह कोर्स वन ऑफ द सपोर्टर्स ऑफ खालिस्तानी. ठीक है, तो देख सकते हो कि इनकी पॉलिटिकल कुछ ना राजनीतिक मजबूरियां हैं, इसलिए ये ऐसे चीज़ें बोल सकते हैं. ठीक है, क्योंकि अलायंस में इस पार्टी के साथ नाम रखा है डेमोक्रेटिक, देख सकते हो काम सारी सेक्स टीचिंग कुछ और है, काम कुछ और है. हैज मीन्ड दैट ट्रूडो गवर्नमेंट डजंट शेयर प्रीवियस गवर्नमेंट्स अवॉवल ऑफ टाइज विद खालिस्तानी सेपरेटिस्ट. कहीं ना कहीं उनके टाइम पे जो भी टाइज जो भी रिलेशंस में रीसेट देखने को मिले थे, तो कहीं ना कहीं अभी की जो सरकार है कनाडा की, उसने इस चीज़ को क्या पता लगता है इससे कि कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में चलने को तैयार नहीं है. सीधी सी बात है, कुर्सी पहले बाद में कुछ और. बैठेंगे तभी तो कुछ डिसीजन लेंगे आगे चल के, जब कुर्सी है वो चली गई फिर क्या. दैट इज प्राइमरी. व्हाई आर टाइगर्स डाइंग इन नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, सो कुछ टाइगर्स टोटल ऑफ 10 टाइगर्स हैव डाइड इन द नीलगिरी सिंस द मिडल ऑफ अगस्त. सो हाउ डिड द टाइगर डाई. सो द फर्स्ट रिपोर्ट, यहाँ से टाइगर रिजर्व हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखना. The first reported tiger deaths occurred on August 16 in buffer zone of Mudumalai Tiger Reserve in Siriyur, okay, तमिलनाडु. ध्यान रखना कि ये सब कहाँ पे हैं टाइगर रिजर्व्स. फाइन, you can see a total of 10 tigers have died in the Nilgiri since the middle of August, and in February this year the forest department arrested 4 poachers from Rajasthan who had illegally poached a tiger. To allay fears that poachers could be targeting tigers, Forest Department plans to set up anti-poaching camps in 6 forest ranges surrounding the मुखुर्ती नेशनल पार्क. मुखुर्ती कहाँ पे है, ये भी तमिलनाडु में है, ये भी न्यूज़ में है. तो ध्यान रखना कि नीलगिरी उस एरिया को बोलते हैं जहाँ पे प्राइस जंक्शन बनता है किस किस का, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. ठीक है,
फाइन। सो इस चीज़ का मुडुमलाई एंड मुकुर्थी नेशनल पार्क, ये दोनों पता ध्यान रखना ये कहाँ पे है। फाइन। What else important miscellaneous facts? So NIA holds searches in 6 states, detains several over terror links, Rajasthani links and all. Here, खासी ऑपरेशन की। ओके, बाकी यहाँ पे पॉलिटिक्स है तो छोड़ सकते हैं। ह्यूज पॉसिबिलिटी फॉर इंडिया यूएस टू बैक ईच अदर, जयशंकर ने कहा है ऐसा। ठीक है, ठीक बात है, बैक कर सकते हैं, बट जिस तरह से फाइव अलाइज एंड कनाडा के बैकग्राउंड में जो चीज़ चल रही है ऐसा, नो इट रिजल्ट्स इनटू डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट अमंग द पार्टनर्स और द कंट्रीज। तो ज़रूरी है कि उस चीज़ों को थोड़ा सा यूएस भी देखे। इट्स यूजफुल फॉर द यूएस टू हैव पार्टनर्स हु फ्रैंकली थिंक वेल ऑफ द यूएस एंड स्पीक वेल ऑफ द यूएस ऑफन बिहाइंड योर बैक। हाँ, तो बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा नहीं कि पीठ के पीछे कुछ और करो और हमने कुछ और, जरूरी है इस चीज़ का। सेड बाय आवर फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ही आइडेंटिफाइज टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड पॉलिटिक्स एज टॉप 3 प्रायोरिटीज ऑफ फॉर द रिलेशनशिप। तो इन 3 एरियाज में जो टॉप प्रायोरिटीज हैं जहाँ की दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं, इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड पॉलिटिक्स। हाई लेवल ऑफ मिलिट्री टेंशन विद चाइना ओवर पास्ट 3 years। ठीक है, तो ये देख सकते हो। Has been in constant touch with his Chinese counterpart, Foreign Minister of China. बाकी वायलेंस एंड ऑल देख सकते हो। इंडिया एजिंग एल्डरली टू मेक अप 20% ऑफ पॉपुलेशन बाय 2050। यूनाइटेड नेशन की जो पॉपुलेशन ये जो रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की, शॉर्ट में ये है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ने कहा है कि कहीं ना कहीं टर्निंग ग्रे जोन में हम जा रहे हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि हाँ जी डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास सबसे, बट ऐसा थोड़ी रहेगा कि सब हमेशा यंग ही रहेंगे, कहीं ना कहीं ये टर्निंग भी देखने को मिलेगी। एंड 20% ऑफ द पॉपुलेशन वुड बी इन दिस एल्डरली ब्रैकेट बाय 20। So, a study says challenges facing India's aging population are the feminization and ruralization of older population। ठीक है, feminization and ruralization की सबसे ज़्यादा रूरल एरियाज में, एंड फीमेल्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी। पॉलिसीज मस्ट बी फ्रेम्ड accordingly। data show that women on an average have higher life expectancy at the age of 60 and 80 when compared with men। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं the chart shows that the share of age groups in this bracket 1950 to 2100, the share of the population over the age of 60 years is to increase from 10.5% in 2022 to 20.8%, मीन्स ऑलमोस्ट डबल होने वाला है। 60 ईयर्स या उससे ऊपर के जो लोग हैं इन इंडियाज ओवरऑल पॉपुलेशन शेयर देखोगे इनकी तो 10.5% बढ़ के 20.8% 2022 से 2050 के बीच में हमें देखने को मिल सकती है। The elderly will form over 36% of the total population of the country by the end of the century, that is by 2100। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेंड 1950 में क्या था, 0 से 14 की पॉपुलेशन क्या थी, 59 की एंड 60 प्लस की। देख सकते हो कि जो ब्लू लाइन है दैट इज शोइंग यू 60 प्लस 36 पॉइंट बाई 2100। बाय 2050 देख सकते हो कि कहीं ना इंटरसेक्शन है समवॉट बिटवीन द पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 14 एंड दिस। तो ये कम होना स्टार्ट हो गया है 0 से 14 एंड आपकी 60 प्लस है बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और जो 15 से 59 के बीच में है यहाँ पे 2050 में समवॉट पीक आएगी, उसके बाद फिर से ये डाउन होना देखो स्टार्ट हो जाएगा। फाइन, बट फिर भी कहीं ना कहीं बेटर रहेगा। सो ऑफ कोर्स एल्डर पॉपुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं बेटर हो जाके हमारी बर्डन बनती है। इंडियन नेवी टू अनवील स्वावलंबन 2.0 नेक्स्ट वीक, वाइस चीफ ने ऐसा कहा है। स्वावलंबन दैट इज 7 futuristic technology in partnership with domestic MSMEs। ठीक है,
इन्होंने टारगेट रखी थी कि 75th ईयर की बात कर रहे हैं अमृतकाल की, सो इसमें क्या करना था, टू प्रोवाइड एन अपडेट ऑन व्हाट हैज बीन अचीव्ड सो फार एंड द वे अहेड। तो इसमें देख सकते हो द नेवी हैज सरपास इट्स टारगेट सेट लास्ट ईयर टू डेवलप 75 फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज इन पार्टनरशिप विद द एमएसएमई एंड स्टार्टअप्स, एंड दिस विल बी अनवील्ड एट द सेकंड एडिशन ऑफ द स्वावलंबन सेमिनार एंड एग्जीबिशन वी हेल्ड ऑन October 4th-5th। फाइन। तो टारगेट जो था 75 इस तरह की पार्टनरशिप की, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी फ्यूचरिस्टिक एमएसएमई स्टार्टअप्स, इसको ऑलरेडी इंडियन नेवी ने सरपास कर दिया। ठीक है, कि अपनी टारगेट से ज़्यादा। सीट्स विद मल्टीपल टॉलरेंस विल बी अ गेम चेंजर। ठीक बात है, हमें ऐसी सीट्स की ज़रूरत है जो टॉलरेंट हो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो भी हमें फॉलोआउट्स देखने को मिलती है। ठीक है, सो अल्ट्रा लॉन्ग G-Secs टू सी गुड डिमांड फ्रॉम इंश्योरर्स पेंशन। G-Sec गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अल्ट्रा लॉन्ग मीन्स जिसकी जो क्या है टाइम पीरियड है वो दैट इज 50 ईयर की है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें इसमें देखने को मिल सकता है गुड डिमांड फ्रॉम द इंश्योरेंस सेक्टर, फ्रॉम द पेंशन इन हाफ ऑफ द course this year। Okay, what is important from the international news, international page? So at least 100 killed and 150 injured in Iraq as fire engulfs wedding hall। Okay, बैक चैनल टॉक्स विद चाइना एग्जिस्ट बट देयर इज अ लिटिल प्रोग्रेस। तिब्बतन लीडर ने कहा है, कल भी दलाई लामा जी की हमने देखी थी स्टेटमेंट इस पे। अपार्ट फ्रॉम दैट्स फाइनली वी आर ऑन दिस स्पोर्ट्स पेज। फाइन, so I think whatever important things were there from the today's newspaper, साइंस है यहाँ पे देख लेते हैं। हाउ कैन क्वांटम कंप्यूटर प्रूव दैट इट इज सुपीरियर। ठीक है, तो क्वांटम कंप्यूटर की बात, कंप्यूटिंग की बात काफ़ी टाइम से चल रही है, तो ज़रूरी है हमारे लिए कि हम इसका भी ध्यान रखें। क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड ऑन फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बट इतनी नहीं, पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, बट सिर्फ भी मोटी मोटी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। In paper Nature Physics, a researcher at Google Quantum AI reported demonstrated in theory that simulating random quantum circuits and determining their output will be difficult for classical computers. Quantum computers solve this problem. It can achieve quantum supremacy. So remember, quantum computers जो हैं वो जो नॉर्मल क्लासिकल कंप्यूटर्स एंड ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स हमारे हैं जो हम यूज़ करते हैं आज के टाइम में, इनसे काफ़ी स्पीड वाइज काफ़ी सुपर हैं, बिकॉज जो हम ही अभी यूज करते हैं कंप्यूटर दैट इज ऑपरेटेड ऑन द बाइनरी डिजिट्स 0 and 1, बट क्वांटम कंप्यूटर्स जो है वो क्यूबिट्स यूज करते हैं। ठीक है, कि एट द सेम टाइम दे कैन प्रोसेस इन बोथ द 0 and 1 लाइक थिंग्स, नॉट वन एट अ टाइम। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं फेसिंग द क्वांटम चैलेंज। तो यहाँ पे भी मेंशन होगा बाइनरी कहीं। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटर्स यूज क्वांटम बिट्स, इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुकी है, और क्यूबिट्स। Whereas classical computers use binary bits, that is 0 and 1. Qubits are fundamentally different from classical bits as they can have values 0 or 1 as a classical bit can, or value that's combination of 0 and 1 called superposition। एक दूसरे के ऊपर impose कर सकते हैं कि वैल्यू जो है वो 0 और 1 की जगह साथ में कॉम्बिनेशन भी हो सकती है 0 and 1 की, जैसे 0 1 1 0 something like that। ठीक है, तो superposition states allow qubits to carry more information, and this capacity for parallelism gives quantum computers their archetypal advantage over the classical computers, allowing them to perform a disproportionately greater number of operations। ठीक है, तो ये हमारे लिए ये फायदे इसके देखने के मिल सकते हैं। Qubits also exhibits entanglement. So quantum entanglement क्या होता है? It means that two qubits can be intrinsically linked regardless of their physical separation। ठीक है, तो entanglement भी ध्यान रखना है, entangled। This property allows quantum computers to tackle complex problems that may be out of reach of classical devices। Okay, so these are the things which actually make quantum computers different from the classical or the traditional computers। Fine,
तो क्वांटम कंप्यूटर्स ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन द क्वांटम सर्किट्स। यहाँ पे एग्जांपल भी है, whereas 1 qubit quantum computer can perform 2 to the power 1 2 computations, a 2 qubit quantum computer can perform 2 to the power 2, that is 4 computations and so forth। देख सकते हो कितना डिफरेंस है। P hard problems, that is quantum circuits are at the heart of quantum computing. These circuits consist of qubits and quantum gates analogous to the logic gates of classical computer। yes, so circuits, circuit boards and all based होती हैं दोनों में ही क्लासिकल में, तो क्लासिकल की जगह हम क्वांटम बेस्ड सर्किट्स देखने को मिलेगी। तो इसमें काइलिल पाथ हम फॉलो कर सकते हैं टू प्रूव दैट देयर इज अ क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स दैट कैन बी सॉल्व्ड बाय क्वांटम कंप्यूटर्स बट नॉट बाय क्लासिकल कंप्यूटर्स। ठीक है, so he used a mathematical construct called the Cayley path. Cayley path is basically like a bridge that helps the traveling salesman move smoothly between two different situations in the study, like one random route and one significant route. Okay, one easier, one difficult. So quantum computers, one situation would be the worst case scenario, like imagining the most challenging quantum circuit possible, and the other would be the average case, a quantum circuit that has been randomly selected from the all possible circuits। तो इसके लिए हम जो कैली पाथ है उसको फॉलो कर सकते हैं। वन पाथ वुड बी द इजियर रिलेटिवली एंड द वन वुड बी द कॉम्प्लेक्स वन। ठीक है, बिकॉज ये जो ब्रिज है दोनों के बीच में, दिस विल अलाउ टू रिफ्रेम द मोस्ट चैलेंजिंग क्वांटम सर्किट्स इन टर्म्स ऑफ द एवरेज सर्किट, लाइक सीइंग हाउ टफ इट माइट बी टू हैंडल द वर्स्ट ट्रैफिक जैम कंपेयर टू योर रेगुलर कम्यूट। ठीक है, तो दोनों की स्टडी अभी चल रही है। ठीक है, दिस इज जस्ट वन ऑफ द पेपर्स। क्वांटम कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्वांटम कॉम्प्लेक्सिटी या क्वांटम जो कंप्यूटिंग की बात करें अपने आप में कॉम्प्लेक्स है काफ़ी प्रोसेस। क्यों? क्योंकि दिस पेपर itself shows that there exists a problem that presents a computational barrier to classical computers but not quantum computers। कि जो भी है इशू वो, इसी को पी हार्ड प्रॉब्लम बोला इन्होंने, कि जो इशू है बैरियर है वो इसके साथ है क्लासिकल कंप्यूटर के साथ बट नॉट विद द क्वांटम कंप्यूटर। तो इसलिए क्वांटम कंप्यूटर्स क्लियर जो है हो सकते हैं over the classical computers। So the establishment of quantum supremacy will have a positive impact on several fields, for example cryptography। So UPSC does ask such kind of questions कि क्वांटम जो सुप्रीमेसी है या क्वांटम जो कंप्यूटर्स हैं उनकी एप्लीकेशन कहाँ पे हो सकती है। ठीक है, साइंस एंड टेक में टेक वाले पार्ट में देखने को मिलते हैं रिलेटेड टू एप्लीकेशंस पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सुप्रीमेसी की है कहाँ पे एप्लीकेशन हो सकती है। क्वांटम सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि क्वांटम कंप्यूटर जो हैं how they are superior from the classical or the traditional computers and where they can be used in the different domains or the fields। For example, cryptography is expected to be a particularly famous beneficiary, at least cryptocurrency की बात सुनी होगी ब्लॉकचेन की, तो उसमें इसको यूज किया जा सकता है। Apart from this, also an advance in quantum complexity theory defining keeping the computational ability of classical computers in mind, quantum complexity theory is concerned with the limits of complexity defined by the quantum computers। okay? तो जो भी limitations हैं पे ध्यान दिया गया इसमें। The theory also challenges the extended church-turning thesis, which is the idea that classical computers can efficiently simulate any physical process। So Dr. Movassag hopes to continue his work to investigate the hardness of additional quantum tasks। Some did disapprove of this church and Turing thesis, जो क्या कहता है कि कहीं ना कहीं क्लासिकल कंप्यूटर्स जो वो एफिशिएंटली जो है सिमुलेट कर सकते हैं ऑफ एनी द रियल सिचुएशन, बेसिकली कॉपी काइंड ऑफ थिंग्स। तो एक पेपर है बेसिकली इन्होंने पब्लिश किया डॉक्टर मोबसाग ने, एंड उसमें ये सारी चीजें। तो दैट्स इट एज फार एज टुडेज analysis is concerned। Before we stop, let us have a quick look at the questions based on today's discussion। So first is, India missed the ideal opportunity during the Delhi summit to protect the rights of workers and ensure their welfare। You need to elaborate in 150 words। Second question is, Sarna code is for tribals to protect their constitutional rights and religious identity। And sixth schedule has provisions related to the administration of tribal areas and tribes। You need to choose the incorrect option। Okay, so that's it from my side। If you have any query, anything, then put the same in the comment section। Till then, take care, keep revising, and stay tuned for tomorrow। Thank you।